क्या बात है, आप लोग पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं है क्या? किसी को नहीं याद है गैलियोस फील्ड क्या होता है? फील्ड क्या होता है, चलो यही बता दो। फील्ड क्या होता है? व्हाट इज फील्ड? Sir, a set of numbers with two operation, integral, domain and multiplicative inverse. ओके, अच्छा, आपके क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं लगभग? कोई है जिसको पता हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में? 58 के अबाउट। ओके, एंड 9-10 लोग क्लास अटेंड करते हैं। ओके, 54। आइदर बाकी लोग सब कुछ जानते होंगे या एज यूजुअल दे डोंट केयर। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कंटेंट जो पढ़ाया था विच इज रिलेटेड विथ which is related with mathematical या पॉलिनोमियल अरिथमेटिक, सिंपल बात कहा जाए तो, या मॉड्यूलर अरिथमेटिक और डिटेल में कहा जाए तो। एंड वी हैव आल्सो सीन सम ऑफ द रिलेटिव थ्योरी अबाउट दैट आल्सो। वी हैव सीन सम ऑफ द रिलेटिव थ्योरी आल्सो। ओके, सो नाउ एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप सभी से कि डू यू नो व्हाट इज factorization and how we can do the polynomial factorization? If I'm giving you an equation like x square plus 6x plus 2, ये अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल? यस स्टूडेंट, is it in the form of polynomial 3x square plus 6x plus 2? Yes, sir. Yes. So how we can do the factorization of this polynomial? What is factorization method and how we can do that? सर फैक्टर के प्रोडक्ट में इनको तोड़ते हैं। सर जैसे 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 हो जाएगा और फिर कॉमन ले लेंगे और वहां से फैक्टर निकल जाएगा। What will be the factor, possible factor of this equation? Polynomial, this polynomial के लिए क्या हो जाएगा? सर एक मिनट। This is the concept you have studied in class 9 and 10th and 8 also. 8 class में भी आपने ये पढ़ा होगा factorization. सर -1 और -2/3। No, I'm not telling about to find the roots of this equation because it is not an equation. I think you know the difference between equation and polynomial. It is not any kind of equation because it is not equal to 0. Remember, I didn't give you this.
I'm just asking you what is the possible factor of this problem. You have rightly said that we can write this in the form of product. So how we can write this particular polynomial in the form of product? Sir, x plus 1 or 3x plus 2 X plus 1 and 3x plus 2. 3x plus 2. Okay, 3x square plus 3x. But ये जो आपका बन रहा है, it is 6x or 5x? I think it is 5x ना? 3x it will be break. अगर हम इसको ओपन करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो दैट शुड बी ऑल्सो द पॉसिबल. यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? It is not 6x. Okay. And what about others? क्या और बाकी लोग 8, 9, 10 पढ़ के नहीं आए क्या? I have given there 6 of x and Himanshu is telling me that yes, ये break नहीं होगा. Okay, ये break नहीं होगा. So try to find that the solution of this problem, how we can do the factorization. It means that if you are telling that it is not breakable, it means it is not reducible. Himanshu, are you telling me that it is not reducible? What is reducible and irreducible? Have you heard this concept before? Reducible and irreducible. You guys are very मतलब एक तो स्टूडेंट्स आते नहीं है कभी भी, और बहुत सारे स्टूडेंट इरिस्पॉन्सिव हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं. व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? क्या आप लोग को लगने लगा आप लोग 4th ईयर में पहुंच गए हैं क्या, या पास कर गए, डिग्री मिल गई आप लोगों को? व्हाट आर यू गाइस थिंकिंग? आई एम आस्किंग यू जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इसको आप ब्रेक कैसे करेंगे? बट यू आर नॉट एबल टू आंसर द सिंपल क्वेश्चन, एंड हाउ आई कैन एक्सपेक्ट कि आप लोग डेप्थ में बता पाएंगे? क्या मैं बोलूं आप लोग? This year response from your batch is very poor. In the previous session, I also taught you DBMS, but in there you was little bit good. It means that in the form of okay, I think, do you know or this or not? Okay, try to do that. It may possible that is not reducible. It is also possible. Okay, that is not an issue. But the issue is right now 9 students are here. Only 9 students are here. Even your strength is as per, मैं minimum भी लेके चलूँ तो 50 का strength है आपके क्लास में, and 9 student are, मतलब कि 1/5 आप लोग पहुंचते हैं क्लास के लिए, and even the response is given by 1 or 2 students. Very good.
what I can say. ओके चलिए, तो मैंने आज आप लोगों को, अगर आपने गूगल क्लासरूम चेक किया होगा तो आप लोगों को पता चलेगा, आई हैव शेयर्ड documents PDF file with you. There we have seen one of the point that how we can find the polynomial GCD, and to find the GCD, as you know that to find the GCD between the number like this, what you will do, इन दो नंबर का जीसीडी अगर आपको फाइंड करना होगा तो हाउ यू कैन फाइंड द जीसीडी, कौन कौन सा मेथड आप जानते होंगे, नेम इट जस्ट द मेथड. आई डोंट वांट द सॉल्यूशन, जस्ट गिव मी द नेम बाय विच यू कैन फाइंड द जीसीडी ऑफ दीज टू नंबर. Yes, student, 45 and 12. You have to find the GCD. Okay. Polynomial GCD. What is polynomial GCD? अभी तो polynomial वो polynomial नहीं है, values हैं बबली. रिमझिम राज का आंसर है डिवीजन मैथड एंड फैक्टराइजेशन मैथड. प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन. वेरी गुड, वेरी गुड. I'm not telling you the topic name. I want to know that how you can find the GCD of two number, which is I have given you in the whiteboard 45 and 12. How you can find the GCD of those two numbers. And Himanshu was very much right, and it is close to the answer. We can find with the help of prime factorization and division. Okay. And in the previous class, as you class have remembered that prime factorization method, in the previous class also we talked about this, that how you can find the values or GCD. And we also talked about Euclidean method. Euclidean method to find the GCD. And there is also extended Euclidean method. We talked about this also, extended Euclidean method, by which you can find the factorization. Okay. So what we do in the prime factorization method, what are the prime factors of how we can write this 45 in the form of prime factors? Prime factors की form में हम कैसे लिखेंगे? Okay, student, try to find the prime factor of 45 and 12. Once it is coming, Goldie 335. Okay, Rimjim Raj response is very much up to the mark. 45. 3, 3 and 5. Okay. And 12 is 4 and 3. 4 is not the prime number. Rimjim, 4 is not the prime number. You have to write it 3 into 2 into 2. Yes. Yes, yes. Shobit. Yes. Okay. So in the form of prime factorization, you have seen that how we can find the GCD with the help of prime factorization. How we can find the GCD of prime with the help of prime factorization. We can take the common factors which are coming and we can tell that this is the GCD of 45 and 12, which is 3. And if I am giving you two function or two polynomial f of x and g of x, and now I am telling you
to find the, let me pull it up. Now I'm telling you to find the GCD of f of x and g of x. Then one approach is known as factorization method. ओके जैसे कि आप क्या करते हैं, जैसे कि आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं किसी भी नंबर्स का, आप उसी तरह से आप क्या करेंगे, जो फंक्शन या जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उस पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद जो कॉमन पार्ट होंगे हम क्या करेंगे, उसको लेंगे एज द GCD. And now if there will be no common part, okay, my next question is, if there will be no common part in case of numbers, like कि हमारा नंबर है 43,12, तो in the case of that I am giving you two numbers numeric form में 43 and 12, and now I am telling you to find the GCD of these two numbers. Then there is no common factor between these two numbers. Then in such a scenario, what is the GCD of these two values? Yes, student. Very good. Himanshu, what you are telling is not the GCD, it is LCM. Okay. So one will be the common. So now come upon to the case of polynomials. If there will be the common factors, then that common factor, whatever it is in the form, I'm just writing it is in the form of a polynomial itself. I'm writing this as a form of its in the form of itself, that it is a one polynomial का common factor क्या होगा, polynomial ही होगा. तो अगर common factor हुआ, दोनों का common factor अगर हमारे पास कुछ मिला तो that will become the GCD. And if in the case there will be no common factor, then what will the GCD of these two polynomial? Can you guess that? What will the GCD of these two polynomials? In the case of polynomial, I am telling you, if we are not able to find the factors, common factors between two polynomial fx and gx, then what will the GCD? Yes, very good. One again. Now I am giving you one of the problem. Now you have to find the GCD. Write it as x square plus 7x plus 6 and x square minus 5x minus 6. I am giving you equation x square plus 7x plus 6 and x square minus 5x minus 6. Minus 6. Yeah. So what this is f of x and this is g of x. Now I am telling you to find the GCD of these fx and gx. First of all, you have to find the factors of these two polynomial fx and gx in the case of factorization, in the method of factorization, and then if there will be the common factor, then we will say that this is the GCD of these two polynomials. Are you able to find out the... Okay, very good. Hema, Shobhit Raj, Babli Chaudhary and Goldie Pandey, everyone has responded x plus 1. Himanshu, Madhu Singh. Okay, good, very good. So how you found that? I think
in both equation you find that there is a polynomial x plus 1 which is the common factor between those two polynomial, and you pick that common factor and you are telling me that x plus 1 will become the GCD of these two polynomials. So this is the method which is known as factorization method, and with the help of this we can find the GCD. Now come upon to the second approach which we follow to find the GCD, which is known as Euclidean method. Okay, which is known as, in the previous class we have seen the modular polynomial arithmetic. Now it is time to look into the polynomial GCD, how we can do that. तो हमने फैक्टराइजेशन का मेथड तो देख लिया. नाउ जो हम अप्रोच देख रहे हैं उसको कहा जाता है, दैट इज नोन एज यूक्लिडियन अप्रोच. और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने पॉलिनोमियल अरिथमेटिक में आपको बताया था कि यू कैन राइट एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, चलिए मैं पहले आपको दिखा दूं, यू कैन राइट अ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स. ओके, ये फॉर्म सबको याद है, ये वाला जो फॉर्म में मैं बात कर रहा हूं. यस स्टूडेंट, याद है? यस सर. ओके, वेरी गुड. सो यहाँ पे आप सभी को याद होगा, तो हम इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को. तो उसी तरह से अगर हमारे पास वी हैव अ टास्क टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फॉर पॉलिनोमियल, तो हम क्या करेंगे, सी ऑफ एक्स, हम सी ऑफ एक्स यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि ये क्या है, सी ऑफ एक्स हमारा क्या है, जीसीडी. तो हम जीसीडी फाइंड करें किसके बीच में, ए एक्स एंड बी एक्स के बीच में. इफ सी एक्स इज द पॉलिनोमियल ऑफ द ग्रेटेस्ट डिग्री विच डिवाइड्स बोथ ए एक्स एंड bx. okay, we can adapt Euclide's algorithm to find it. हम अब एल्गोरिथम की तरफ बढ़ रहे हैं, Euclid of ax and bx फाइंड कर रहे हैं. तो कैपिटल ax इज इक्वल टू हम क्या लिए, ये तो जस्ट एज अ रिप्रेजेंटेशन है, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया. अब यहाँ पे है कि इफ bx इज इक्वल टू 0, अगर हमारा bx का वैल्यू, bx का, जिस bx क्या है, एक दूसरा पॉलिनोमियल है ax एंड bx, तो क्या है, bx अगर 0 है हमारा, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, ax एज द जीसीडी ऑफ ax, bx. ओके, हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे कि डिड समबडी ट्राइंग टू ज्वाइन सो लेट. ओके, वेयर वी वाज हियर. तो हम क्या करेंगे, अगर 0 है तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, जीसीडी ax, bx. ठीक है. अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड द मॉडुलस डिवीजन. हम क्या करेंगे, मॉडुलस डिवीजन करेंगे ax एंड bx का. आई थिंक इन द प्रीवियस क्लास वी टॉक्ड अबाउट द मॉडुलस डिवीजन आल्सो. और अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम यूक्लिडियन के बारे में बात किए थे इन द केस ऑफ, अगर आपको याद होगा जो बचपन में हम यूज करते थे डिवीजन अप्रोच, रेसिड्यू बचता था, रेसिड्यू को फिर से हम क्या करते थे, डिवाइजर को फिर एज अ वैल्यू में डिविडेंड में लाते थे और फिर से डिवीजन स्टार्ट करते थे. उस फॉर्म में हम क्या करेंगे, ax में अब bx की वैल्यू को डाल देंगे और bx में rx की वैल्यू को डाल देंगे, और ये अप्रोच हम करते जाएंगे till we will find that हम कहाँ स्टेप में जा रहे हैं, स्टेप 2 में, जब तक कि हमारा bx 0 ना हो जाए, तब तक हम ये अप्रोच क्या करते जाएंगे, कंटिन्यू रखेंगे. ठीक है. तो with the help of this you can also find out the polynomial GCD. okay, now come upon to the modular arithmetic polynomial. सो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हम गैलोस फील्ड जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसमें हम p जो ले रहे थे, वो p क्या था हमारा, दैट इज द, इन केस ऑफ दैट इज द प्राइम नंबर. ये हमारा प्राइम नंबर होता था.
बट अब इन केस ऑफ हम अगर जो क्रिप्टोग्राफी में यूज करते हैं वो हम हमेशा पी ही नहीं यूज करते, कभी कभी जो होता है ये आपका GF ऑफ 2 raised to the power n के फॉर्म में भी होता है। ठीक है, अब यहां पे जो सिंपल सी बात है, अगर हम 2 ले रहे हैं तो जो पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट होगा, ये प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था कि दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ मॉडुलस 2, और मैं यहाँ पे मॉडुलस 2 जो बात कर रहा हूँ कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि कोफिशिएंट की वैल्यू आइदर इन 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, पॉलिनोमियल की जो कोफिशिएंट्स की वैल्यू होगी मॉडुलस 2 में होगी। ठीक है, whose degree is less than n, whose degree is less than n, hence must reduce modulo an irreducible polynomial of degree n for multiplication। और ये क्या करेगा, फाइनाइट फील्ड का फॉर्मेशन करेगा। फील्ड क्या होता है, फाइनाइट फील्ड क्या होता है, ये हम प्रीवियस क्लासेस में बात कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंडेड यूक्लिडियन मेथड हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि कैसे। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको कि जहां पे कि हम GF ऑफ 2 raised to the power 3 को निकाल रहे हैं, गैलोस फील्ड ऑफ 2 raised to the power 3 को कंप्यूट कर रहे हैं। तो ये कैसे हम कंप्यूटेशन करेंगे, चूंकि 3 बिट है, n की वैल्यू क्या है, 3 बिट है, तो आपने यहां पे क्या पढ़ा, यहां पे डायरेक्टली ओके, यहां पे एक बात आपको बताया क्या गया था, whose degree is less than n। तो डिग्री जो ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज लेस देन n, तो क्या होगा, ओके सॉरी, डिग्री जो होगा, डिग्री विल बी लेस देन 3। तो पॉसिबल डिग्री क्या क्या होगा, 2, 1 एंड 0। ओके, 2, 1 एंड 0 पॉलिनोमियल में अब यही बचता है। तो आपके पास जो इक्वेशन होगा वो इस फॉर्म में हो सकता है ना, x² प्लस x प्लस 1। आप यहां पे क्या देख रहे होंगे, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ मॉडुलस 2 पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे हर एक जो भी कोफिशिएंट है आइदर वो क्या है, 0 है या 1 है। अब हम इसका अगर हम एडिशन ऑपरेशन करेंगे, एडिशन में हम कैसे लिखेंगे गैलोस फील्ड 2 raised to the power 3 को, तो हम 3 बिट में इसके लिए 1 बिट, इसके लिए 1 बिट और इसके लिए 1 बिट लेंगे। ओके, तो आप इसको MSB लेके चलेंगे, इसको LSB लेके चलेंगे। I think what is MSB and what is LSB you know very well। तो हम 0 को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसे करते हैं, वाया दिस। 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वाया दिस। 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वाया दिस। 3 को कैसे रिप्रेजेंट, 3 जो है 3 कैन बी रिटन लाइक दिस, 4 कैन बी रिटन लाइक दिस, 5 कैन बी रिटन लाइक दिस, 6 कैन बी रिटन लाइक दिस एंड 7 can be written like this। Okay, this is the case। Somebody trying to join, Nisha Kumari, so late। Okay, so this is the representation। अब यहां पे मैं बात आपको बता दूं, 0 जो होगा that is simply 0 ही है आपका। 1 जो है that is 1, बट जो 2 है, अब अगर आप देखेंगे यहां पे 2 है तो 0 1 0 0 1 0। तो यहां पे अगर आप लिखेंगे, यहां पे अगर आप लिखेंगे इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल, तो इट कैन बी रिटन 2 कैन बी रिटन एज x। और 3 को जब आप लिखने के लिए जाएंगे, 3 को जब आप लिखने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे, अब आप इसको क्या कर दे रहे हैं, 1 कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो 3 आपका क्या बन जाएगा, x प्लस 1। उसी तरह से 4 को कैसे हम लिख रहे हैं, 1 0 0। तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, यहां पे अगर हम लिखे 4 के लिए तो ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0। तो ये 4 क्या हो जाएगा, दैट इज x²। 4 क्या हो जाएगा आपका
एक्स स्क्वायर। 5 के लिए उसी टाइप से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। 6 के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एंड 7 के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। समझ में आया सभी को? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये जो मैंने न्यूमेरिक को रिप्रेजेंट किया है, जो आपका बाइनरी है, बाइनरी के हेल्प से कैसे हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख रहे हैं, सभी को समझ में आया? यस स्टूडेंट। देखिए न्यूमेरिक को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो बहुत इजीली। ओके ओके, हिमांशु इज टेलिंग, एक बार फिर से। ओके ओके हिमांशु, कम ऑन टू द व्हाइट बोर्ड, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अप लेता हूं। तो चलिए, जो हमारा वैल्यू है 0 0 0, 3 बिट है तो 3 ही फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसी टाइप से लिखा जा सकता है 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो गया। अब हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशन पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्या लिया जा सकता है, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आप क्या कीजिए, हर एक बिट को एक्टिवेट कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू को एक्टिवेट कर 0 0 0, तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली 0। अब यहाँ है 0 0 1, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग 1 बिट अवेलेबल है, तो ये क्या हो गया 1। अब क्या है 0 1 0, तो अब ये इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको 0 1 0 को कैसे हम लिखेंगे, x। अब क्या है 0 1 1, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, दिस विल बिकम x प्लस 1। एंड ये क्या है 1 0 0, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। करस्पॉन्डिंग बिट हमको सिर्फ देखना है 1 0 1, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। एंड 1 1 0, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और लास्ट में 1 1 1 सारे एक्टिवेट, तो क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये समझ में आया? यस स्टूडेंट। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, हिमांशु, मधु, बबली, रिमझिम, ये 4 लोग को समझ में आ गया है। चलिए, तो अब हमको टेबल फिलिंग का काम करना है। सिंपल, देखिए आपको अगर नंबर गिवन होता और आपको कहा जाता कि मॉडुलस निकालो, तो आप आसानी से निकाल लेते कि मॉड 8 का ऑपरेशन करें तो आसानी से निकल जाएगा। बट मैं उसी, जैसे आप न्यूमेरिक वैल्यू का आसानी से मॉडुलस निकाल लेते हैं, एडिशन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, उसमें मैं उसी तरह से चाहता हूं कि आप जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का भी आप आसानी से ऑपरेट कर सकें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम gf ऑफ 2 raised to the power 3 का हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन जो लेते हैं वो एडिशन का ऑपरेशन। अब हमने क्या किया, आपको अब सिंपल एडिशन करना है, तो 0 को 0 से अगर ऐड करेंगे, 0 को 0 से ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू प्रोड्यूस होगी 0। मैं थोड़ा सा इधर तो समझ में आ गया ना, ये पार्ट सभी को समझ में आ चुका है, इधर भी आ चुका होगा। अगर आपको ये जो कन्वर्जन मैंने बताया है, ये कन्वर्जन अगर आपको क्लियर है तो आपको जो दोनों स्लाइड के दोनों पार्ट है उनकी नीड नहीं है, मैं उनको इरेज कर देता हूं, ठीक है, बिकॉज आई विल यूज दिस स्पेस, नहीं तो बहुत ज्यादा ही क्या हो जाएगा, ओवर राइटिंग हो जाएंगे और यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। Okay, so now come upon to the operation. I am coming for the operation कि operation से कैसे हम इस चीज को समझेंगे। अब अगर हम एडिशन ऑपरेशन कर रहे हैं तो एडिशन ऑपरेशन में हम, हमारे पास जो वैल्यू है वो आपको रो और कॉलम में रिप्रेजेंटेड है, और रो और कॉलम में जो वैल्यू है, इन द केस ऑफ 0 and 0 व्हाट विल द रिजल्टेंट, 0 0 0 को आप 0 0 0 से अगर आप ऐड करते हैं
और यहाँ पे क्या है, मॉड ऑपरेशन भी आपका गैलोस फील्ड लगा हुआ है 2⁻³ का। ठीक है, इट मींस जो पॉलिनोमियल फॉर्म आप लिख सकते हैं वो मॉड के जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम डिग्री होगी लेस देन 3। somebody is trying to join. Richa Kumari, so late. Why people are joining so late? क्या फायदा है, अटेंडेंस के लिए क्या ज्वाइन कर रहे हैं? ओके, तो अगर हम इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करते हैं तो व्हाट विल द रिजल्टेंट, अगेन 0, अगेन 0। तो यहां पे क्या वैल्यू आई, 0। अब अगर हम 0 0 0 से अगर हम 0 0 1 को ऐड करते हैं तो व्हाट विल द वैल्यू, दिस वैल्यू। एंड आई थिंक यू नो दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, 1 लिख सकते हैं इसको। अगर हम 0 0 0 से 0 1 0 को ऐड करें तो व्हाट विल द रिजल्टेंट, इट विल बी दिस। एंड हाउ यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, वाया दिस। उसी तरह से 0 1 0 को ऐड करेंगे, 1 0 0 को ऐड करेंगे, 1 0 1 को ऐड करेंगे, 1 1 0 को ऐड करेंगे, 1 1 1 को ऐड करेंगे। तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब आप कहीं भी आ जाइए, कहीं भी आ जाइए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसको आप ऐड कर रहे हैं किससे, यहां से ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया 1 0 1। आपको जो है वो इन द फॉर्म ऑफ यही लिखना है, gf ऑफ 2⁻³ तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो व्हाट विल बी लाइक दिस, कैन यू ऐड दिस, okay, somebody is telling 1 0 1 0 1 0 1 0, okay, सो कॉमन आंसर है कि 0 1 0 के फॉर्म में होगा। अंशुमन राज is also joining so late. Some people are only joining for their attendance. Okay, be happy with that. तो चलिए अगर हम इसको करते हैं, ऑपरेशन को करते हैं, तो इसको सबसे पहले हम यहां से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा जो वैल्यू होगा बेसिकली यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है, इस एडिशन को आप सिंपली ये भी समझ सकते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सॉर ऑपरेशन, क्योंकि आपका यहाँ जो भी एडिशन है वो सिंपली एक एक्सॉर की तरह वर्क कर रहा है। जो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, एक्सॉर्ड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आप अगर उसको एक्सॉर्ड करेंगे तो दैट वैल्यू वी विल गेट। ओके, सो नाउ इफ यू डू द एक्सॉर ऑपरेशन, क्योंकि 0 0 0 के केस में जब हम इनिशियल केस लेके चल रहे थे तो वहां आप एडिशन कीजिए चाहे एक्सॉर कीजिए, जो बात होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन चल रहा है दैट इज, अगर आपका यहाँ पे प्लस है तो आप सिंपल समझिए कि आपका एक्सॉर ऑपरेशन चल रहा है। तो एक्सॉर, क्या आप एक्सॉर कर सकते हैं, क्या आप एक्सॉर कर सकते हैं? एंड आई थिंक यू नो व्हाट इज द एक्सॉर वैल्यूज। What will the yes, very good, very good. So and 0 0 0 will be written in the form of polynomial. What is the value will be that? 0. Very good, 0. So I think you know that the value will be 0 0 0 and it will be written as 0 and the result is 0. अब आप कहीं भी आप ऑपरेशन कीजिए, एक्सॉर कीजिए, और with the help of that you can easily find out the value. You can easily find out the value. Clear है सभी को? Yes, very good. Now I am giving you link for today's attendance. Kindly fill that up.
एक्सॉर बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। अच्छा चलिए मैं एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, मैं आपको लिंक पहले प्रोवाइड कर देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आऊँगा। Okay. I have provided you link for today's attendance. Kindly fill it up. Now my basic question is, can you perform swapping with the help of C programming using operators? आपने C में प्रोग्राम लिखा है ऑपरेटर के हेल्प से स्वैप करने का, या स्वैपिंग का प्रोग्राम लिखा है क्या? Yes. Anshuman, I have a question for you. Why you join class so late? आप हमेशा, मैंने एक चीज मार्क किया, आप क्लास हमेशा लेट ही ज्वाइन करते हैं। कभी आपको नींद आ रही होती है, कभी आपको कुछ हो रहा होता है, बट ऑलवेज यू ज्वाइन क्लास लेट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? Sorry is not the reason. Okay. Now my next question is for all of you, that if you perform the swapping, okay, if you perform the swapping, then which operator you used? Till now, which operator you used? मैं बोलूं कि ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर के हेल्प से अगर आपको स्वैपिंग करनी हो तो आप कौन से ऑपरेटर सी प्रोग्रामिंग में यूज करोगे जिसके हेल्प से आपको हो जाए स्वैपिंग? सिंपल। असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, गोल्डी पांडे। आई थिंक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही है ना? हाँ चलिए। ओके। एनीथिंग एल्स? I think with the help of multiplication and division also you can do the swapping with a restriction that none of the number must be 0. Yes. Any other operator? Addition, subtraction, multiplication, division by using the third operand, एक्स्ट्रा एक वेरिएबल लेके आप स्वैपिंग कर सकते हैं। आई थिंक हेमा गुप्ता का जो आंसर था आई थिंक वही होगा कि एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे, टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करके फिर स्वैप कर लेंगे। यस। ओके। अच्छा चलिए, गोल्डी और मधु ने जो आंसर दिया है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मधु का आंसर। क्या सिंगल ऑपरेटर, क्या कोई सिंगल ऑपरेटर है जिसके हेल्प से अगर आप उस स्वैपिंग परफॉर्म कर सकते हैं? क्या सिंगल ऑपरेटर कोई है जिसके हेल्प से आप स्वैपिंग परफॉर्म कर सकते हैं? यस स्टूडेंट, क्या कोई सिंगल ऑपरेटर है जिसके हेल्प से आप स्वैपिंग कर सकते हैं? Okay, very good, very good. Goldie has responded XOR. Yes, XOR is the right answer. And XOR को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? With the help of this. Okay, with the help of this. और
Why we can do this? Because XOR has a certain property that अगर आपका कोई वैल्यू है A एंड B, अगर आप लिखे A XOR B तो आपको जो वैल्यू मिली Y, अगर आप फिर से लिखे Y XOR B तो क्या वैल्यू मिलेगी, क्या वैल्यू होगी यहां पे, क्या वैल्यू होगा? यस स्टूडेंट, मैंने पहले किया y इज इक्वल टू a XOR b और फिर मैंने किया y XOR b, तो अब जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी वो क्या वैल्यू होगी? Yes, very good. The value which it will produce is A, because XOR has a special functionality that कि अगर आप क्या करते हैं इवन टाइम्स, मतलब कि अगर क्या करें कि अगर आप y को हम लिख क्या सकते हैं A XOR B, तो अगर आप सेम को XOR करते हैं दिस विल बी रिजल्टेंट एज 0 and 0 XOR something will be something. So XOR has a very special functionality. Okay, that's why in the cryptography we use XOR operator very much. Now, तो ये तो हो गई एडिशन टेबल को फिल करने की बात। नेक्स्ट आपके पास आता है और नेक्स्ट है कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल को फिलअप करना हो तो कैन यू डू दैट? अब आपको मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाना है और ये याद रखना है कि जो आप ऑपरेटर यूज कर रहे हैं वो मॉडुलस अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज हो रहा है। ओके, मॉडुलस अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया जा रहा है और मॉडुलस पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं? इट इज इन द फॉर्म ऑफ आइदर द कोफिशिएंट वैल्यू इज 0 और 1, 0 और 1। तो यहां पे क्या करेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन वाले टेबल को फिल करने की बात करें तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, रिजल्टेंट ऑलवेज 0 होगा। इट मीन्स अगर आप किसी भी x में यहाँ पे ये मत समझिएगा मैं ये कोई वैल्यू ले रहा हूं x, बल्कि मैं एक कोई भी ऑपरेंड है x और इसमें क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं आपका 0 के साथ, तो रिजल्टेंट आइदर 0 आपका लेफ्ट में हो या आपके राइट में हो, रिजल्टेंट विल बी ऑलवेज 0। तो यू कैन फिल दिस कॉलम एज वेल एज दिस रो इजिली। ओके, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम रिजल्टेंट वैल्यू देगा। x के साथ मल्टीप्लाई करें, चलिए अब यहां पे बात आती है, x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब आपका क्या होगा, 1 के साथ x को मल्टीप्लाई किए तो 1 का जो कॉलम है रो है वो आप पूरा फिल कर सकते हो आसानी से। अब यहां पे बात रही कि आपको x के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, x का x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। लेकिन x, अब ये भी आप आसानी से फिल कर सकते हैं, x प्लस 1 को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो x के साथ तो क्या वैल्यू है, ओके स्टूडेंट, ये जो इलेबोरेशन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग अपनी तरफ से भी सोच के आइएगा कि हाउ वी कैन डू दिस ऑपरेशन। ओके, सो वी एंड टुडेज क्लास राइट हियर राइट नाउ।
I have a next class also. So that's why I am stopping this class. Thank you, student. Have a nice day.